Shifa Awasthi, Head Nutrition Officer, UNICEF, Madhya Pradesh. Ms. Bhavna Deharia, Sports Expert, Mount Everest Summiter. Ms. Sheena Chawla, Co-Founder, Live 365, Amway. Hi, a very good afternoon to all of you. Thank you very much for being present. I know it's lunchtime and everybody's hungry. Am I audible now? Yes. More than audible, I think. Okay, so it's lunchtime, so I wouldn't take much of everybody's time, but I will do justice to every panelist over here. Once again, thank you very much for all of you to come. I think each one of your credentials is way more exciting than what I have read. And meeting each one of you, talking to each one of you, except for yourself, thank you for coming last minute, was very, very entertaining and exciting and very inspirational. I hope you enjoy this panel and I'll take it forward. So just to begin with a small introduction, I don't think I will be able to do the justice to the introduction, but I will lead a little bit. So Ms. Bhavna Deharia, she's a pioneering mountaineer and adventure sports advocate from Tamia district in Chhindwara in Madhya Pradesh, and it's a very interesting data and a bio of hers. After reading it, I think I was like, oh my god, I don't know whether I'm capable enough to conduct this or not. She's climbed many peaks starting from Everest in Australia, how do you pronounce this? Kosciuszko, Mount Kilimanjaro in 2019, Mount DKD, Manirang Mountain, Himalayan mountaineering. She's promoting Indian Himalayas and mountaineering. She teaches a lot of students as well for sports. Having a mini chat with her, I learned that she's also, showcased her talent in TEDx. Teaches many schools and also has started the Run on Run movement in Bhopal, I think. It's in Chhindwara, the Chhindwara Marathon. So I wouldn't like to waste much time. I would definitely encourage you, Bhavna ma'am, that what is the driving force behind your decision to pursue this particular cultural path and this career path of yours, and how has your vision evolved over time? When I start, मतलब जब मैं बहुत छोटी क्लास में थी और सब घर में आते थे एंड देन वो कहते थे कि आपको क्या बनना है, हर बच्चे से कोई भी घर में आके पूछता है ना कि आप बड़े होकर क्या बनोगे. तो जब मैंने जैसे मेंटर की बात हुई थी, तो मैंने जीके में पढ़ा कि हमारे इंडिया की जो फर्स्ट वुमन है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट क्लाइंब किया, विजेंद्री पाल मैम. तो जब उनके बारे में पढ़ा और जैसे आपने मेरा इंट्रोडक्शन दिया, आई बिलोंग, ये सब बहुत ही छोटा सा गांव है तामिया, और अभी तो काफ़ी फेमस हो गया बिकॉज उसको मिनी पचमढ़ी भी बोलते हैं, हिल स्टेशन है. लेकिन ये जब जिस टाइम की मैं बात कर रही हूँ, तब वहाँ पर एक मतलब सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल हुआ करते थे, गाइडेंस की बहुत ज़्यादा कमी थी. लेकिन मेरे पिताजी से जब मैंने कहा कि मुझे माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करना है जैसे विजेंद्री पाल मैम ने किया है, और मैं बड़े होकर मतलब माउंटेनियर ही बनना चाहती हूँ और स्पोर्ट्स में जाना चाहती हूँ, तो मेरे पिताजी ने कहा कि भावना, अगर तुमने तामिया के सारे पहाड़ चढ़ लिए तो तुम वहाँ पर एक दिन ज़रूर चढ़ जाओगी. तो तब उनको भी नहीं पता था कि माउंटेनिंग में कैसे जाया जाता है, और तब इतना स्मार्ट, जैसे मैं बोलती हूँ ना, अब वुमेन्स बैठी हैं, स्मार्टफोन आ गए हैं. तब हमारे यहाँ तो टीवी भी नहीं हुआ करती थी, फ़ोन तो बहुत दूर था कि लाइक वो लैंडलाइन ही हुआ करता था. तो किसी से भी नहीं पूछा जा सकता था कि कैसे माउंटेनियर बनते हैं, कैसे हम इस फील्ड में जाएंगे. तो तब इतना भी मोटिवेशन की लाइक अगर आपने यहाँ के पहाड़ चल लिए तो माउंट एवरेस्ट चढ़ जाएंगे. तो मेरा बस ये कहना है अभी कि लाइक ना, कि अगर स्मार्टफोन होता, आज हम किसी भी फील्ड के बारे में अगर स्मार्टफोन में डालते हैं तो मतलब इतने हज़ारों ऑप्शंस आ जाते हैं. तो अगर स्मार्टफोन का स्मार्टली यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है. तो ऐसे स्टार्ट हुआ, और फिर उसके बाद जब मैंने सर्च किया कि कैसे हम इस फील्ड में जा सकते हैं, तो मैंने स्पोर्ट्स चुना, क्योंकि फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेंटल हेल्थ, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच भावना मैम. आई एम श्योर आपकी जो ऊंचाइयाँ हैं वो कंटिन्यूसली बढ़ती रहेंगी. थैंक यू वेरी मच.
I'd now like to go to Ms. Sheena Chavla. She's an inspiration as well in her own. She's the co-founder of Live 365, which is a community of health and well-being and a community dedicated to making health the #1 priority in people's life. जैसे आपने काफ़ी सुना होगा गट हेल्थ, लिवर को लेकर, शुगर मैनेजमेंट को लेकर, फ्लेक्सी मूव्स ताकि आपकी फिजिकल लिमिटेशंस को दूर कर पाएँ. उन्होंने काफ़ी इनोवेटिव प्रोग्राम्स और न्यूट्रिशनल सॉल्यूशंस निकाले हैं फ्रॉम न्यूट्रीलाइट. एंड ज़्यादा वक्त न बर्बाद करके शीना मैम, आई वुड लाइक यू टू basically tell me ki, can you start by telling a bit more about your personal and your professional background and what key experiences have you led to which are today? What are the key experiences? मेरी शादी बहुत जल्दी हो गई थी. I was hello. So I got married at a very early age. मैं 21 साल की थी जब मेरी शादी हो गई. एंड आई थिंक चंदा जी ने भी बोला कि उस टाइम यही था कि जल्दी शादी कर दो, बच्चे कर दो. एंड आई वाज मैरिड टू अ जॉइंट फैमिली. करते करते काफ़ी साल निकल गए, 10 साल निकल गए. इवन दो आई हैड डन माई ग्रेजुएशन इन बायोलॉजी, मेजर में करा था मैंने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से. एंड बट उसको फॉलो करने का टाइम नहीं मिला. एंड वो करते करते फैमिली को संभालते, हस्बैंड को देखते, आई वॉज ओवर 100 kgs. एंड दैट इज़ व्हेन आई वॉज डायग्नोस्ड विद थायराइड. और मुझे लगा कि मुझे हमेशा के लिए दवाइयाँ नहीं खानी, मुझे उससे बचना है. एंड मैंने उस टाइम तक उससे पहले मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था जहाँ पे आई वॉज हिट फ्रॉम द बैक और मेरा बैक इफेक्ट हुआ था. तो दैट इज़ वेयर आई वॉज इंट्रोड्यूस टू न्यूट्रोलाइट. और वहाँ के मैंने उनके सप्लीमेंट्स खाए एंड इट वुड रियली हेल्प मी टू कम बैक टू माई नॉर्मल उसमें. एंड तो आई वॉज कंज्यूमिंग दोज सप्लीमेंट्स मैं ले रही थी. एंड वॉज एसोसिएटेड विद एमवे, न्यूट्रोलाइट. एंड काफ़ी मुझे उनसे हेल्प मिल रही थी उन सप्लीमेंट से. और जब थायराइड डिटेक्ट हुआ तो मुझे लगा कि अब क्या करूँ. सो दैट इज़ द टाइम मैंने बहुत स्टडी जैसे करा, मेक गुड यूज़ ऑफ स्मार्टफोन्स. तो मेरे पास कंप्यूटर था, तो मैंने कंप्यूटर में बहुत स्टडी करा, गूगल का फ़ायदा लिया. एंड मैंने आई स्टार्टेड डूइंग सम, उसमें सबसे पहले देखा एक्सरसाइज. तो आई स्टार्टेड विद एक्सरसाइज. सप्लीमेंट्स अगेन आई टुक सपोर्ट, वेरी गुड सपोर्ट. बिकॉज देखिए हमारे हर घर में किचन है और उस किचन में बहुत सारे सोल्यूशंस हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं. तो मैंने खान पान पे पूरा फोकस करा. जहाँ जहाँ पे मैं अपने खाने से नहीं पूरा सकती वहाँ पे मैंने न्यूट्रिशन का सपोर्ट लिया. सो ऑल दिस थिंग्स विद इन 3 months ऑफ प्रॉपर डाइट, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज, जो हमारे 6 पिलर्स होते हैं उस पर मैंने काम करा. एंड इन 3 months आई वॉज एबल टू रिवर्स माई थायराइड. और वो दिन और आज का दिन एवरी 6 months आई गेट माई टेस्ट और मेरे बिल्कुल सही आते हैं रिपोर्ट्स. बट कुछ ना कुछ ऐसे करता चलता रहता है. देन आई वॉज डन विद मेरे को लिगामेंट, मेरा पाँव मुड़ गया और मेरे 2 टाइम वहाँ पर सेम जगह पे हेयर एंड फ्रैक्चर हो गया. एंड वहीं पर ही मुझे लिगामेंट इंजरी हुई. एंड फॉर 2 years मैंने कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा, फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई टू भोपाल. बट नोबडी वाज एबल टू उसको एग्जैक्टली क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, वो मुझे पेन चाहिए था. मतलब मेरा जो पाँव था इट वाज ऑलमोस्ट लाइक कह सकते हैं पूरा डबल रोटी जैसा इतना मोटा हो गया था. एंड मेरे से चप्पल नहीं पहने जाती थी, जूते नहीं पहने जाते थे, मेरे से चला नहीं जाता था. इट वाज इन अ वेरी बैड शेप, पेनफुल. और मैं रोज रोती थी कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है. एंड फाइनली मुझे एक चीज़ हुआ कि उन्होंने बताया कि आपके इट वाज अ सिंपल थिंग, आई हैव अ फ्लैट फुट, आई हैव अ फ्लैट फुट. तो फ्लैट फुट की वजह से मेरे जूते प्रॉपर मेरे को समझ में आया, डायग्नोज हुआ कि फ्लैट फुट है. तो आई स्टार्टेड वेयरिंग प्रॉपर शूज़, प्रॉपर जो सेल्फ जो एक्सरसाइज है, मसाजेस हैं, जो मैंने वो करना शुरू करा. एंड दैट इज़ वेयर आई केम आउट विद दिस होल आइडिया ऑफ फ्लेक्सिमूव. किसी ना आइडिया आए और उसको यूज़ करो. फ्लेक्सिमूव इज़ ऑल अबाउट पीपल विद लिमिटेशंस. बैक पेन है, हम बहुत ओवरवेट है, हम दौड़ नहीं सकते, हम एक्सरसाइज कैसे करें, या लेडीज है जा ही नहीं सकती हैं. दैट इज़ वेयर दिस आइडिया ऑफ क्रिएटिंग एन ऑनलाइन कम्युनिटी, एंड कोविड वॉज अराउंड दैट टाइम फ्रेम. तो ये ऑनलाइन कम्युनिटी हमारी स्टार्ट हुई. एंड जस्ट इट इज एवरीथिंग स्टार्टेड विद माई ओन एक्सपीरियंस. मैंने पहले खुद पे ट्राई करा, उसका सोल्यूशन मुझे मिला, और फिर देन I was able to help others also with that, and that is how my journey started with this community Live 365. and बहुत अच्छा लगता है जब हम लोगों को हेल्प करते हैं और उनसे हमें लगता है कि हम ये कर पा रहे हैं, हमारी लाइफ चेंज हो गई. बिकॉज जब मेरी लाइफ चेंज हुई तो मुझे लगा मैं दूसरों को भी कर सकती हूँ. एंड बहुत अच्छा इससे रिस्पॉन्स आ रहा है और बहुत लोगों को हम
पैन इंडिया हेल्प कर पा रहे हैं, स्पेशली व्हेन पीपल वर 60 इयर्स 70 इयर्स वेट लूज करते हैं. लाइक वन लेडी हु हैड नी सर्जरीज, उनका नी हो गया पर नी सर्जरी में उनका 8 किलो वजन बढ़ गया. अब वो ना चल सकती हैं, ना दौड़ सकती हैं, ना जिम जा सकती है. उनका वेट कैसे कम करें? तो उनको चेयर पे बैठा के हमने उनका 8 किलो वजन कम करवाया. तो जब आदमी सक्षम होता है खुद से अपने आप को हील करने के लिए, विच इज एवरीथिंग इज अवेलेबल एट योर होम, कंफर्ट ऑफ योर होम, वो सब चीज़ें हैं, यू नो, आप कर सकते हो. जस्ट यू हैव टू बी मोर अवेयर. एंड भगवान ने बहुत अच्छी बॉडी बनाई है जो खुद रिपेयर कर जाती है, तो उसका फायदा उठाना चाहिए. लवली. सीना मैम, एक और चीज़ अगर आप बताएंगे, वो 7-day गट हेल्थ के बारे में क्या है? सो सी, आज भी जी सब जैसे यहाँ पे सब महिलाएं बैठी हैं और किसी ने बोला भी था कि सबसे बाद में हम खाना खाते हैं या सोचते भी नहीं है. तो आज सुबह कितने लोगों ने क्या क्या खाया? क्या खाया मैम? भाजी वड़ा और पोहा. ओके, वेरी नाइस. और किसी ने कुछ क्या खाया? मैडम तो हाथ ही लग रहे, हम तो कुछ खाए ही नहीं. 80% है चाय और ब्रेड या चाय और टोस्ट खा लेंगे, राइट? तो हम सब भी ऐसे ही हैं. मेरा भी शुरुआत पहले 1 कप चाय से होती थी. एंड व्हाट आई रियलाइज कि हम लाइक ऑल एलिमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम आवर किचन ओनली एंड ऑल सॉल्यूशंस कम फ्रॉम आवर किचन ओनली. और हमारी पूरी बॉडी का जो कहते हैं ना कहानी, एक लाइन है अपने मुहावरा है कि सारी समस्याओं की जड़ हमारे पेट से शुरू होती है, राइट? तो वो समस्या जो है, गट इज ऑल अबाउट यू नो ईटिंग राइट थिंग एट द राइट टाइम विद द राइट कॉम्बिनेशन. इट्स ऑल अबाउट दैट, राइट? तो गट हेल्थ वही है कि हम किस टाइम पे क्या खा रहे हैं और कितना खा रहे हैं और सही टाइम पे. तो मॉर्निंग में आपको सही न्यूट्रिशन लेना है तो आपको बैलेंस्ड फूड खाना बहुत जरूरी है. तो रात को आप खाओ नहीं खाओ, पर दिन में क्या खा रहे हो उठने के आधे घंटे बाद, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. दैट इज द गट हेल्थ ऑल अबाउट. Lovely, thank you so much. And अगर किसी को और इस पे information चाहिए, तो I'm sure Sheena ma'am can help your gut. Pushpa ma'am is next now, so I would like to give a brief introduction. Pushpa Awasthi ma'am is a nutritional specialist in UNICEF in Madhya Pradesh. She has 27 plus years of experience in the field of child development and nutrition. She's worked in 3 states, MP, Chhattisgarh and Orissa within India. Ma'am, I don't think it's doing justice to your profile. Can you please tell me more about your credentials as well? Actually, I'm working as a nutrition specialist in UNICEF. UNICEF is an organization you must be aware about, who's working for children specifically. And my experience of working in this field is like from one end to the other end, I would say. Starting from child development, moving to nutrition. I had a background of child development and nutrition from the education sector. The thing is, people don't understand nutrition. Everybody thinks that they know nutrition. So what is there to be told to them? उनको क्या आप अलग बता देंगे? हम तो हर कोई अच्छा खाना खाते हैं, सबको लगता है कि आप अलग क्या बता दोगे? We know, and Google is something which is doing a lot of damage to nutrition, I would say, because lot of things is available on Google which is actually not right at times, and people adopt without understanding the core of nutrition. So that's a challenge. For my what I start when I started working as a trainer in one of the government institution, and my challenge was to train elderly women who were working in the system. So changing elderly people who have their own mindset and their own experience, it's not so easy. So that was my first challenge. So I have to adapt to the way I look, to the way I dress, to the way I speak. So that's how I started. That's my experience in the field. Lovely. Then Thank this you. sector. Yes. I think this was how your early experiences have shaped up your career direction, and that is a very motivating goal for each one of us, at least for me. I'm very inspired. Thank you. Can I move on to the next question? That's okay. Yeah, please. So we're talking about challenges over here. Pushpa ma'am, what are some of the biggest obstacles that you have faced and encountered when starting out, and how did you navigate through them? When I started, I was a girl, first thing, young one, because after post graduation I started my job. Third, my job required a lot of traveling as well. So we have to go to the villages, stay there in the village. I have also stayed in a temple without a door. So you can imagine staying in a temple in a village where you know nobody, जिसको आप नहीं जानते हो किसी को भी, and no toilets. So you have to ask someone in the village who is influential and has a toilet, can I use your toilet? So it was that difficult. Also the perception women and men have for women who are working, like young women who are going to the village and working,
बेचारी गांव-गांव भटक रही है, इसके पास काम ही नहीं है कोई ढंग का. This was the dialogues I used to hear. When I got a little, like, I kept on changing, like, initially I started with as a trainer, then I moved as a position as a consultant, then I moved as an officer, and then as a specialist. So when I became an officer and I went to one of the district, the dialogue which came from another officer who was a good renowned person in the district, कि women तो इस फील्ड में नहीं होते हैं, how did you come to this में, आपको छोड़ देना चाहिए ये जॉब, this is not safe for you. So इस तरह के dialogues, but I was very very confident on one side. Somebody, Michael, I thought she was saying, confidence is the key. One, second, your family support. Like my father and my mother were supporting me a lot, so they had this trust. I belong from a Brahmin family, so Brahmin family में women normally doesn't pick up the job I took up. तो उसमें ये भी था कि बिगड़ जाएगी लड़की, बाहर रहती है 15 दिन महीने में, होटल्स में रुकती है, जानते नहीं हो आप वहाँ पे किससे मिलती है, तो बहुत सारे तरह के ऑब्स्टिकल्स थे. बट एवरी टाइम जिसने भी मेरे लिए ऐसा बोला, आई कन्फ्रंटेड देम. मैंने उनको बोला, व्हाट डज दैट मेक यू कि आप ऐसा सोचें मेरे बारे में, हु आर यू टू जज मी. एंड आई गिव देम द चैलेंज कि आप मेरे साथ चलो, इफ यू वांट टू सी कि मैं कैसे काम करती हूँ, मेरे साथ चलो, थोड़े दिन आप देखोगे, यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम डूइंग एंड व्हाई आई एम डूइंग. एंड बिलीव मी, breaking gender stereotypes is very difficult, specifically for jobs which are not normally considered as jobs for women, जो कि men और dominated jobs होते हैं, या जहाँ पर men का ज़्यादा involvement हो. जैसे traveling, हम लोग बहुत सारा travel करते हैं, and especially difficult areas में जहाँ पर malnutrition ज़्यादा है, जहाँ problem ज़्यादा है, we have to be there. So उन जगह पे facilities भी कम होती है, अच्छे hotels नहीं मिलेंगे आपको, सेफ्टी आपके लिए हमेशा एक क्वेश्चन होगा, लेकिन यू हैव टू बी वेरी डेयरिंग. लाइक एक इंस्टेंस मैं बताती हूँ, होटल में मैं रुकी थी, मुझे जो खिड़की, जो बेड साइड की जो खिड़की होती है, वहाँ से कोई अंदर एंटर होते हुए दिखा. आई केम आउट फ्रॉम द बाथरूम एंड आई सॉ समबडी एंट्रिंग. इंस्टेड ऑफ मी रनिंग आउट ऑफ द डोर, आई थॉट आई विल ग्रैब हिम. मैंने ये सोचा ही नहीं कि वो मुझे नुकसान पहुँचा सकता है, लेकिन वो डर गया मेरे इस एक्शन से और वो भाग गया. तो ऐसी चीज़ें भी होती है व्हेन यू गो आउट, स्पेशली छोटी छोटी डिस्ट्रिक्ट्स में. बट अभी जो मैं आपसे बात करना चाह रही थी, मेनली आज जो मेरा इंटेंशन था आपसे बात करने का, न्यूट्रिशन इज समथिंग वेयर वी शुड इन्वेस्ट मोर. न्यूट्रिशन फॉर बॉडी एंड न्यूट्रिशन फॉर ब्रेन्स. इफ यू वांट टू हैव गुड business women, you invest on their nutrition. 1 out of 2 women in India, in MP, specifically in MP, is anemic. So a person who is anemic will not have the capacity to deliver the best. आप अगर खून की कमी से पहले से ही सफ़र कर रहे हैं, आपका ना ब्रेन उतना रिजल्ट देगा, ना आपकी बॉडी उतना साथ देगी, तो यू विल नॉट बी एबल टू गिव योर बेस्ट. सो फॉर दैट यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग. जिसमें इन्होंने बोला था कि विमेन हम लास्ट में खाते हैं, क्यों? वी ऑल्सो प्लान फॉर आवरसेल्फ ना, कि हम भी अच्छा खाएं. सबके लिए जो बना रहे हैं, इट्स नॉट दैट कि आप अपने लिए ना बनाएं. हम क्या सोचते हैं, उन्होंने खा लिया तो थोड़ा बचा, कौन फिर से मेहनत करे, कम पड़ गया तो नहीं. आप अपने लिए भी एक्स्ट्रा सोच के रखिए कि हाँ, ये चीज़ ऐसी है जो लोगों को पसंद आ सकती है, घर में बच्चे पसंद करेंगे, ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगी, तो एक्स्ट्रा बनाइए. भले एक लोगों का बच जाए, किसी को खिला दीजिए, लेकिन अपने लिए भी रखिए. एंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग ऑन योरसेल्फ. Lovely. Thank you so much, and very, very inspirational. Thank you very much. Bhavna ma'am, what are the primary challenges that you have faced in the coming years, and how have you been preparing to address them? मैंने माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया, आपने बताया, मगर मैं ये कहूँगी कि मेरे सामने माउंट एवरेस्ट, 2 एवरेस्ट थे. एक संघर्ष का एवरेस्ट और एक माउंट एवरेस्ट. दोनों ही बहुत चैलेंजिंग थे. तो संघर्ष का एवरेस्ट मुझे ज़्यादा चैलेंजिंग लगा, क्योंकि जब मैंने एवरेस्ट के बारे में स्टडी करी और कैसे जाया जा सकता है, कैसे होगा, और जब मुझे पता चला कि उसको क्लाइम करने के लिए नेपाल गवर्नमेंट से परमिट लेना होता है, तो परमिट ऐसे आसानी से नहीं मिलता. यू हैव रेफरेंसेस या रिसोर्सेज जो उसका परमिट दिलाए, या आपकी गवर्नमेंट हो या आपका कोई बिजनेस पर्सन जो उस डेजिग्नेशन में हो, जो वहाँ से बात करके मुझे परमिट दिला सके. तो उसके लिए मैंने 4 साल बहुत संघर्ष किया. मैं रेडी थी, जो भी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए एवरेज जाने के लिए. मैंने माउंटेनिंग के कोर्स किए हुए हैं, बेसिक माउंटेनिंग, एडवांस माउंटेनिंग, MOI भी किया हुआ है. अभी मैं बिगनर माउंटेनियर्स को ट्रेनिंग देती हूँ, और जो हमारे इंडिया में इंस्टीट्यूट है माउंटेनिंग के, 5 इंस्टीट्यूट हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू रन होते हैं.
तो वो लोग मुझे एज एन इंस्ट्रक्टर इनवाइट भी करते हैं कोर्सेज के लिए। तो बट जब मैं रेडी थी लेकिन फिर भी मैं जा नहीं सकती थी क्योंकि मेरे पास परमिट नहीं था। तो कई बार हम तैयार होते हैं लेकिन हमको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है, यही हम उसको कहेंगे। तो 4 साल मुझे लगे उस परमिट को लेने के लिए। उस परमिट में मुझे नहीं पता था कि वो कौन से साल पे मिल जाएगा, तो हर साल मैं अपने आप को प्रिपेयर रखती थी। मेरी स्टडी भी थी, मैंने फिजिकल एजुकेशन किया है यहीं भोपाल से। तो कॉलेज जाती थी, कॉलेज से वापस आती थी और उसके बाद मैं ये परमिट के लिए डोर टू डोर लाइक चाहे वो लीडर्स हो, चाहे जिनके पास मैं जा सकती हूँ, जिनके रेफरेंस मैं ले सकती हूँ, उनके पास मैं जाती थी। और ये बहुत इजी होता है कि यार आप तो जैसे मुझे जिनसे भी मिलती थी, जिनको मैं अपने आइडिया बताती थी, जो नहीं कर सकता वो अरे तुम तो इतना अच्छा काम कर, मतलब इतना अच्छा सोचा तुमने, इतना अच्छा स्टेट को प्रेजेंट करने वाली हो, तो तुम्हें तो कोई भी मदद कर देगा। और एक और बात की अरे तुम तो फीमेल हो ना, तुम्हें तो आराम से सपोर्ट मिल जाएगा, तुम्हें इतना मतलब इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कहना कि हम इतना मतलब जो हम कहते हैं ना कैसे बताऊँ मैं कि लाइक आप इतना बताते हो कि लाइक हम इतना कर रहे हैं फीमेल के लिए, आज सशक्तिकरण, जिस लाइक की सशक्तिकरण इतना ज़्यादा बढ़ गया है, लेकिन ये थॉट अभी भी इनके मन में है कि लाइक आप फीमेल हो, आपको तो कोई भी कर देगा, मतलब आपने जो काम किया है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आप फीमेल हो इसलिए आपको ये सपोर्ट मिल गया। लेकिन एज अ फीमेल मैं किसी लीडर के घर के सामने तपती धूप में उनका इंतज़ार करती रही 1 हफ्ते 2 हफ्ते। एज अ फीमेल मुझसे किसी ने पानी के लिए भी नहीं पूछा, और आज वही लोग इनवाइट भी करते हैं अपने इवेंट में। तो दिस इज़ द डिफरेंस जब आप स्ट्रगल कर रहे होते हो और जब आप कुछ अचीव कर लेते हो। तो ये सिर्फ लोगों की सोच अभी बहुत बदल गई हम ये कहेंगे, लेकिन अभी भी वो कहीं ना कहीं है कि वो हमको फेस करना पड़ता है। और लोगों का अभी भी माइंडसेट है कि आप तो फीमेल है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। फीमेल को भी उतना ही संघर्ष करना पड़ता है जितना मेल करता है, चाहे वो प्रमोशन के लिए हो चाहे कुछ के लिए हो। आजकल बहुत मीम बनते हैं कि लाइक फीमेल है तो आपको प्रमोशन ही ईजी मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। उतना ही डिलीवर्स देना पड़ता है जितना मेल दे रहा है, और उससे कई ज़्यादा देना पड़ता है जैसा मैम ने बताया। तो 4 साल मुझे लगे, और जैसा मैंने अपनी जगह के बारे में बताया, बहुत ही छोटी जगह है तामिया पतालकोट। पतालकोट सबसे डीपेस्ट जगह है मध्य प्रदेश की, वहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ और मैंने सपना देखा कि मैं हाईएस्ट पीक पे जाऊँगी। तो जब मैं किसी से मिले आई डोंट मतलब मैं किसी को बताती नहीं कौन वो पर्सन है, बट जिसकी मैं मिलने गई और मैंने उनसे कहा कि लाइक मुझे ये परमिट चाहिए, प्लीज़ आप मेरी हेल्प कर दें। और जब आप किसी ऐसे पर्सन से मिलते हैं जो काफ़ी नामी हैं और उनके पास बहुत सारे लोग होते हैं आसपास, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम मतलब कहाँ से हो। जब मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया तो मैंने कहा तामिया से हूँ। तो बोले अच्छा तामिया जहाँ पतालकोट है? मैंने कहा यस है। तो आई एम वेरी हैप्पी कि मेरी जगह को कोई जानता है और अब शायद कुछ अच्छा होने वाला है। तो उन्होंने हंस दिया लाइक ना कि देखो देखो पतालकोट की लड़की आई है माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करने। और ये मेरे लिए बहुत ही एम्बैरेसमेंट वाला मोमेंट था, और लिटरली मुझे लग रहा था कि शायद मेरे आँख में आंसू आ जाएंगे, बट मैंने अपने आप को काफ़ी कंट्रोल किया और उनकी हंसते चेहरे आज भी मेरे सामने आते हैं। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप कहाँ से हैं, इससे फ़र्क पड़ता है कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। और एक और चीज़ बताऊंगी कि इन 4 साल में जिसकी रेफरेंस वर्ड भी मुझे बहुत हर्ट करता है। मैं गई किसी के पास तो उन्होंने पूछा किसके रेफरेंस से आई हो, लाइक तो मैंने कहा मुझे लगा कि आप मेरी हेल्प कर देंगे, दैट्स वाई मैं आई हूँ आपके पास। तो उन्होंने कहा कि ना ठीक है नेक्स्ट वीक आना, फिर नेक्स्ट वीक ऐसे करते टाइम चला गया। तो तब मुझे बहुत हर्ट गया कि रेफरेंस क्या होता है। आई एम द मतलब लाइक अगर आप लीडर हैं या आप जो भी है, तो आप एक ह्यूमन से मिलने के लिए किसी के रेफरेंस की ज़रूरत नहीं होना चाहिए अगर वो अपना इंट्रोडक्शन खुद दे सकता है। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि और ये भी कि आप क्यों ऐसा करना चाहती हो, आप तो नहीं कर पाओगी, आपने ऐसा क्यों किया। तो ऐसे आपके साथ भी बहुत लोग ऐसा करेंगे कि जो चीज़ आपने चूज़ करी है, जो भी एम किया चूज़ किया है, वो शायद रॉन्ग है, आप नहीं कर सकती हो, ये इसमें तो मेल जाते हैं, या फिर वो बहुत ही चैलेंजिंग है, आप दूसरी फील्ड ले लो, क्यों इसके पीछे पड़ी हो। ये मतलब मैं स्पोर्ट्स में थी तो जिनसे मैं मिली तो उन्होंने कहा कि आप बास्केटबॉल क्यों नहीं खेलती हो। मतलब जब मैंने उन्हें बताया कि मैं बास्केटबॉल की नेशनल प्लेयर हूँ, तो बोले इसमें जाओ ना, आप इंटरनेशनल करो, आपने क्यों माउंटेन में क्लाइंब करना है। तो ऐसे आपके साथ भी हो सकता है। तो क्योंकि वो नहीं जानते हैं कि आप क्या कर सकते हो, लेकिन हम अपने आप को जानते हैं कि हम क्या कर सकते हैं।
तो ये चीज़ ने हमेशा मुझे मोटिवेट रखा। और रेफरेंस वर्ड को फिर मैंने सोचा कि एक दिन ऐसा आएगा कि जब मुझे बताना नहीं पड़ेगा कि कौन भावना डहरिया, सब अपने आप ही जान जाएंगे कि हाँ वही भावना डहरिया जिसने माउंट एवरेस्ट क्लाइंब किया या एक प्रोफेशनल माउंटेनियर है। तो आई थिंक वो टाइम आ चुका है। तो हमें इन डिमोटिवेशन से बिल्कुल, मतलब जब भी कोई इस तरह की बात करे तो डिमोटिवेट नहीं होना है, हमेशा मोटिवेट होना है, ये सोचकर कि शायद वो नहीं जानता, हम तो अपने आप को जानते हैं। और ऐसे 4 साल गुजारे और फिर मुझे जब बुरे लोग मिलते हैं तो भगवान ने अच्छे लोग भी बनाए हैं, अच्छे लोग भी मिलते हैं, हमको परमिट मिला, मैं जा पाई माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट मैं कहूँगी कि ये मेरी सेकंड लाइफ है जो मैं आपके सामने बैठी हूँ। वो इतना चैलेंजिंग है कि उस बाकी गेम में या तो जीत होती है हार होती है, इस गेम में ऐसा होता है कि या तो आप जिंदा वापस आते हैं या तो फिर नहीं आते हैं। तो ये काफ़ी चैलेंजिंग था, लेकिन मैंने तो अपना माउंट एवरेस्ट क्लाइंब कर लिया, आप भी अपना एवरेस्ट जरूर क्लाइंब करें। वाह, लवली, थैंक यू भावना मैम। आपने संघर्ष और कंटिन्यूएशन और कंटिन्यूटी का दोनों एक बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव दिया है हम सबको, थैंक यू। शीना मैम, आई एम श्योर आपके भी कुछ चैलेंजेस फेस हुए होंगे लाइफ में विद योर करियर एंड योर पर्सनल फ्रंट, उसमें आपने किस स्ट्रैटेजीज के साथ उसको ओवरकम करने की कोशिश करी है? मेरा तो सबसे ज़्यादा यही था कि ऑफ कोर्स फैमिली वाज थे कि तुमको क्या ज़रूरत है, बिकॉज कमिंग फ्रॉम अ ऑफिशियल फैमिली बैकग्राउंड, तुमको लगता था कि क्या करना, क्यों करना चाह रही हो, व्हाई डू यू वांट टू डू दिस। मैंने, क्योंकि ये मुझे सेल्फ सैटिस्फैक्शन, वन वाज कि मेरे को जो मिला मैं दूसरे को दे सकती हूँ, जो अगर आपके पास प्रसाद है तो आप दूसरे को भी दे सकते हो। सेकेंडली वाज द अवेयरनेस अमंग पीपल, बिकॉज दिस अ वेरी थिन लाइन बिटवीन वेलनेस एंड इलनेस। यू नो, वेलनेस और इलनेस सिर्फ W और I का ही फर्क है। तो ये फर्क समझाना कि हम अपने आप को प्रिवेंशन कर सकते हैं, यू नो, बीमारी से दूर रह सकते हैं। और उसमें बहुत ही लोगों को समझ में नहीं आता था। वो पूछते, उनको समझाते थे कि आप ये करो, ये खाना खाओ, आप यू नो ये सप्लीमेंट्स लो, या ये न्यूट्रिशन आपको हेल्प करेगा, ये एक्सरसाइज आपको हेल्प करेगी, इससे ही आप ठीक हो सकते हो। तो बोलते थे डॉक्टर से पूछ के बताएंगे, विच इज फाइन, यू नो, सर्टन एरियाज वी आल्सो टेल देम आप डॉक्टर से पूछ लो। बट यू नो, जैसे हीमोग्लोबिन कम है, ठीक है, देयर इज अ थिंग, अगर आप प्रॉपर आप चुकंदर खाओगे, आप पालक प्रॉपर खाओगे, क्योंकि खाना हमारे घर में कैसा बनता है, कितने लोग ये पूछते हैं कि बेटा आज पालक खाओगे, आज पर हीमोग्लोबिन कम, आज पालक बनाते, ऐसे नहीं पूछा, बोलते कि आज तुम्हारे खाने का क्या मन है, आज क्या टेस्टी बनाना है। मम्मी को भी बच्चे भी बोलते मम्मा कुछ टेस्टी बना दो, ये नहीं बोलते मम्मा कुछ हेल्दी बना दो, ठीक है। तो हम लोग जो भी घर में खाना बनता है वो हम टेस्ट के हिसाब से बनाते हैं, जुबान के हिसाब से बनाते हैं, कि ना कि हमारे लिवर को क्या चाहिए, हमारी किडनी को क्या चाहिए, हमारे गट को क्या चाहिए, ये सब सोच को थोड़ी बनाते हैं, राइट। कई लोग बोलते हैं कि इसका स्वाद नहीं अच्छा, करेले का जूस भी लोग पीते हैं और लोग मिक्स्ड फ्रूट जूस भी पीते हैं, राइट। जस्ट ये अवेयरनेस क्रिएट करना लोगों में, मुझे लगता था कि जब भी मैं जाती थी बोलते तुम अपने फायदे के, क्योंकि तुम बेचना चाहते हो इसलिए अपने आप को ये तुम कर रहे हो। बट मोर देन दैट इट वाज दे डिडंट अंडरस्टैंड द इंटेंशंस, कि हम अपने आप को सेल्फ हील कर सकते हैं, बट वी नीड टू क्रिएट दैट एनवायरनमेंट एंड जस्ट टू एजुकेट। द फर्स्ट थिंग वाज टू एजुकेट माय फैमिली, बिकॉज जब मैं उनसे वो मिलेट की रोटी में टेलिंग माय हस्बैंड ओनली कि हम लोग ज्वार बाजरा, नहीं हम तो गेहूं की, हम सालों से गेहूं की रोटी खा रहे हैं, हम ज्वार बाजरा क्यों खाएं, राइट। तो जस्ट दैट टेस्ट बड्स को ही करना। अब वो ज्वार बाजरा की रोटी खाते हैं पर अब उनको वो भी अच्छी लगती है। तो जस्ट दैट माइंडसेट, टू चेंज माइंडसेट फ्रॉम illness to wellness was a big challenge for me. That was, and I think with COVID again, COVID ने बहुत चीजें मेरे लिए आसान कर दी हैं, because अब वो awareness automatically लोगों में। Absolutely, and I think rightly put, it starts from where you reside. Pushpa ma'am, a question to you. I'd like to understand कि आपने अपनी करियर में क्या opportunities देखी हैं और उस पर कैसे leverage किया है? When I started my career as a trainer, as I told, I got an offer from UNICEF. It was an opportunity for me. I refused for the first time because, as I told it, the job requires a lot of traveling. I travel all 52 districts depending on the need, and also beyond the state. So initially, because I have my responsibilities with my parents, so I decided no, I will not go out because my parents need me. So I decided no. So that opportunity मैंने छोड़ दी. Second opportunity again, the same offer came to me for a longer period. Then my father counts a lot for the family, what I realized, and men also do that. But for women बहुत कम opportunities मिलती हैं और उसमें भी हम फिर छोड़ देने. So that क्योंकि मैंने बहुत सारे international offers भी छोड़े
because I wanted to be with my family and be with them when they need me the most. लेकिन जैसे जो अपॉर्चुनिटीज मैंने ग्रैब की वो था, जैसे व्हेन आई गॉट द पोजीशन एज अ कंसल्टेंट फॉर डिवीजन, फर्स्ट कंसल्टेंट फॉर द डिवीजन वाज जबलपुर एंड रीवा डिवीजन, एंड आई वाज सपोज्ड टू टेक केयर ऑफ 16 डिस्ट्रिक्ट्स. व्हेन आई लैंडेड इन जबलपुर, जब मैं पहुंची स्टेशन पे, वहाँ पे बड़ा क्योस था, सम राइट्स हो गए थे, एंड आई थॉट कि एंड गंदगी सब जगह, पान और जो गंदगी थी, इट वाज हॉरिबल. मैंने सोचा कि सेकेंड ट्रेन से वापस चली जाऊंगी, मुझे नहीं काम करना ये. फिर मैंने सोचा नहीं, ये लोग सोचे कि डर के भाग गई, तो लेट मी डू गुड वर्क सो दैट दे रिमेंबर कि हाँ कोई लड़की थी जो कुछ काम करके गई थी. आई स्टार्टेड वर्किंग एंड बिलीव मी, मैं दूसरी बार पीछे मुड़ के नहीं देख पाई, क्योंकि उसके बाद एवरी ईयर आई वॉज असाइंड अ न्यू डिविजन. सो जबलपुर रीवा के बाद फिर मुझे इंदौर डिवीजन मिला, उज्जैन डिवीजन मिला, रीवा दिस ग्वालियर एंड चंबल डिवीजन. So I got this opportunity of moving, and every time I got this offer, I took it. मैंने उसको छोड़ा नहीं. फिर दोबारा एक बार जब मुझे समझ आ गया कि I can do it, I have this courage to face all the जो भी आ रहा है अपोजिट मेरे चाहे वो लोग कैरेक्टर पे बोलते हो या बोलते हो कि कहीं भी रहती है, होटल में जाती है, इतने दिन ट्रैवल करती है, कहाँ रहती है. स्लोली पीपल ऑल्सो स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग. फिर मेरे नेबर्स ने मुझसे सवाल करना बंद कर दिया, इनफैक्ट रिस्पेक्ट करना शुरू कर दिया. पहले जो मुझे डाउट की नज़र से देखते थे कि लड़की अकेली रहती है, कि आई वॉज लिविंग ऑल अलोन जहाँ भी मैं रहती हूँ, एक फ्लैट लेके अगर आप रह रहे हो तो कोई भी सवाल पूछता है. ऑल्दो कुछ चीज़ें मैं भी मेंटेन करती थी अपनी, मेरी एक मैंने लाइन बना रखी थी जिसको मैं कभी क्रॉस नहीं करती, ताकि पीपल शुड नॉट कम टू मी इन अ रॉन्ग वे, दे शुड नॉट टेक एडवांटेज ऑफ मी बीइंग अलोन. तो वो भी मैंने अपना एक लाइन, और सबको लोग मुझसे डरते भी थे कि उन्हें पता था अगर मुझसे गलत बात की तो आई विल गिव देम बैक एंड लाउडली. मैं कभी डरती नहीं थी सोचने की 10 लोग बैठे इनके सामने मैं कैसे बोल दूँ. जैसे एक इंसान ने मुझे एक बार फ़ोन लगा के बहुत परेशान किया, रात को अराउंड 25-30 कॉल किए होंगे, एंड देन मैं उसी समय रात को जा रही थी उसके घर, लेकिन फिर सबने मुझे रोका नहीं, ये राइट टाइम नहीं है उसके घर जाने का. नेक्स्ट डे मॉर्निंग मीटिंग के बाद में वो बंदा मुझे वहाँ मिला, तो मैंने सारे लोग जो बैठे थे ऑफिसर सबके सामने मैंने बोला, आपने रात को मुझे इतने कॉल्स क्यों लगाए, लेट्स गो टू द पुलिस स्टेशन. और वो उसको ऐसा सोचा ही नहीं होगा उसने कि मैं 10 लोगों के सामने बोल दूँ, बिकॉज वुमेन हेजिटेट कि मेरा रिस्पेक्ट सामने आ जाएगा. पर ये मैंने कभी नहीं किया. मैं चाहे जो हो, जैसे कभी बस में कोई मिला या ट्रेन में कोई मिला और वो बदतमीजी का, मैं सबके सामने बोला जोर से चिल्ला के. तो लोगों को अपने आप को डर आता है जब आप लाउडली बोलते हो ना, तो वो सोचता है कि हाँ मुझे आगे कदम बढ़ाना है. कि हम क्या करते हैं, अक्सर वुमेन हेजिटेट करती, रोक लेती खुद को, जो नहीं करना चाहिए. तो ये ऐसे अपॉर्चुनिटीज मैंने कभी छोड़ी नहीं जहाँ मुझे लगा कि मैं एक वॉइस बन सकती हूँ, किसी को हेल्प कर. मतलब मेरे साथ जो दूसरी लड़कियां थी उनको भी हिम्मत आ गई. जैसे दिल्ली में एक बार बस में हमें कुछ लोग परेशान कर रहे थे, मैंने बोला अगली बार इसका हाथ इधर आया उसको उठा के बाहर फेंक देना. तो मेरे साथ जो दूसरे और थे उनको भी हिम्मत आ गई, हाँ वी कैन डू दैट. मतलब अगर हम ऐसा चिल्ला के, फिर जब सब लोगों ने पीछे से मुड़ के देखना शुरू किया कि लड़कियां क्यों चिल्ला रही हैं, तो वो इंसान डर गए. तो ये इस तरह आपको वो करेज रखना पड़ेगा अगर आपको आगे बढ़ना है. तो ये एक अपॉर्चुनिटी थी. एंड दूसरा मुझे लगा, मुझे जब भी जैसे आउट ऑफ स्टेट भी जाना पड़ा, मैंने छत्तीसगढ़ का पहले लिया बिकॉज वो नेबरिंग था, फ्लाइट्स कनेक्टिविटी थी, मैं आ सकती थी MP वापस. मैं इंदौर को बिलोंग करती हूँ, तो मैंने वो पहले वो अपॉर्चुनिटी ट्राई की. देन आई गॉट अ वेरी, उससे भी ऊपर वाला पोजीशन मिल रहा था, तो आई ट्राइड. भले ही मैं वहाँ 2 साल रही, लेकिन आई टुक दैट अपॉर्चुनिटी टू लर्न मोर. एंड क्योंकि दूसरे स्टेट में उनका अलग तरह का प्रोग्रामिंग है, अलग तरह का वर्किंग स्टाइल है, दैट आई कैन लर्न एंड अडॉप्ट इन माई ओन स्टेट. एंड देन व्हेन आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू मूव बैक, I came here. So that's how I tried. Like all the opportunities what I got, I tried to use it on time, except for the initial ones when I was bound to be with my family. Now I am the family head, so I have this liberty to move around. I haven't got married because of my family कि मैं उनकी responsibility ले सकूँ. तो अभी I feel that क्या बोलते हैं, that proud कि I can do something for my family. That's very, very amazing, Pushpa ma'am. Defining clear boundaries with respect is a very challenging task in itself, and you've really, truly leveraged it with smartness and determination. Thank you for being such an inspiration. I'd like to sum this session up, and one last question that I'll ask in 2 words, if all of you can define in your lives, professionally and personally, who was that one mentor, or many mentors, but that one person who has really made you realize that, or given you that cutting edge to push yourself wherever you've been. Starting with Bhavna ma'am. मैंने पहले बताया मेरे फादर, जिन्होंने मुझे बोला कि तुम ऐसा कर लो. लेकिन मेंटर, गुरु
एक्चुअल में जो मेरे प्रिंसिपल सर थे मेरे कॉलेज के, उनने मुझे इंस्पायर किया और मेंटर किया कि लाइक कैसे तुम सही वे जा सकते हो, लाइक आप कैसे किससे हेल्प मांगनी चाहिए, कौन आपकी कर सकता है। और उन्होंने मुझे ये भी मतलब अभी भी कंटिन्यू लाइक मैंने तो कुछ अचीव कर लिया, बट अब मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सोसाइटी के लिए, या मैं क्या कर सकती हूँ, तो उसके लिए वो मुझे इंस्पायर करते हैं वहाँ और बताते हैं। और मुझे लगता है कि जब हम किसी एक प्लेटफॉर्म में पहुंच जाते हैं या एक अच्छी जगह पहुंच जाते हैं, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारे पीछे जो लोग हैं उनको हम कैसे आगे ला Absolutely. पाएं। तो अब मैं उसके ऊपर काम करती हूँ, क्योंकि छिंदवाड़ा बहुत ही उस टाइम पे उतना डेवलप नहीं था, अभी तो बहुत है। तो क्योंकि मैं स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, स्पोर्ट्स कंसल्टेंट्स भी हूँ, जैसे आपने बता दिया है, तो अब मेरा टारगेट है कि कैसे मैं फिजिकल एक्टिविटी में मैं लोगों को जोड़ूं। तो ऐसे जो Thank मेरे you. मेंटर Lovely. हैं मुझे Fabulous. सीना मैम आपके मेंटर एंड मेंटर से ज़्यादा मेरे लिए इंस्पिरेशन है, बिकॉज वेन आई सी पीपल जिनको मैं जिनके साथ मैं काम करती हूँ, जो मेरे क्लाइंट्स हैं और पीपल आई वर्क विद ऑन अ डेली बेसिस, उनकी फेस में जब स्माइल देखती हूँ, when they feel good, जब उनकी छोटी छोटी चीज़ें, जैसे उनका गट अच्छा हो गया, वो कुछ लोग जो नीचे बैठ नहीं पा रहे थे वो नीचे बैठ पा रहे थे, उनके फेस पे जो स्माइल होती है, जस्ट दैट स्माइल इज एवरी डे जो मुझे इंस्पायर करता है कि मैं और बेटर होती रहूँ। एंड देखिए आज की डेट में तो आपके मेंटोर इंस्पिरेशंस बहुत सारे हो सकते हैं, लाइक आई लर्न फ्रॉम सदगुरु, आई लर्न फ्रॉम एवरीबडी, आई लर्न फ्रॉम यू, आई लर्न फ्रॉम मेनी पीपल, सदगुरु, just simple, Locatino है, सदगुरु है, there's one person in US, he's a कुंडलिनी योगा के मास्टर हैं, वो डॉक्टर जयदेव हैं। तो you learn from so many people, but you know सबसे इम्पोर्टेंट है जब सामने वाले की स्माइल, जो वो आके बोलता है कि थैंक यू, आपकी वजह से हम नीचे बैठ पा रहे हैं, आपकी वजह से हम चल पा रहे हैं, आज हम अपने आप को देख पा रहे हैं कि हम और अच्छा जी रहे हैं, और ज़्यादा फिट हैं, और ज़्यादा हेल्दी हैं। That is my biggest inspiration. थैंक यू, दैट्स अमेजिंग। मैम योर्स? For me, I would say my mother and father, because I saw them doing what I am doing now. They were courageous, they were hardworking, they were helping others. And my father used to give half of his salary to students so that they can study, and my mother never raised a question. So that is how I got the inspiration from my parents, and luckily I got all the ones with whom I worked in my career. They were also an inspiration. Like Shalini Taimoge was one of the icon in the NGO where I was working in Indore. It's a Balniketan Center, it's an NGO. She was a Padma Shri and many more award winner. So that's one. And then in my remaining career also, I got people who were actually like Dr. Avneet Daniel. He's now in Sri Lanka, health and nutrition manager. But I have got a lot of inspiration from him. Fabulous. Thank you. A big round of applause to each one of you for coming here, and thank you for giving me the opportunity to even moderate you. Thank you very much. Before we finish the session, I would request Ms. Jyoti Deshmukh ji to please come forward to facilitate our guest. I would request her to please facilitate Ms. Jyotsna Sanghi, Chairperson and Managing Director, SGS Motors Private Limited. I would request I would now request ma'am to please present a token of gratitude to Dr. Pushpa Avasthi.